Good morning to all my dear summer students. Welcome to Zoology online class. On the previous class, I was continuing the animals association, but that is towards the last session or towards the last end of the class, there was the technical trouble which compelled me to stop. So let me describe or let me repeat the same, that is the last part. The animals association, I have told you, most of the animals are free living and some are living with the other animals, and they are very closely attached to each other and they remaining together. So the condition of attachment is of a different. According to the different conditions, animals associations have been differentiated into major three parts. One is commensalism. I have told you that is in the previous class, commensalism. It is an association between two different individuals where one is benefited, another is neither benefited nor injured. Clear? And the beneficial one is called as the commensal and the other one is called as the host. And I have told you that is the example is sea anemone and the hermit crab. The hermit crab is the host and the sea anemone is the commensal. I had drawn the figure in the previous class, so I am not drawing the figure again. Clear? Try to understand me. Then the second one is called as the symbiosis. The second one is called as the first one is commensalism. That is the commensalism. That is the commensalism. And the second one is called as the symbiosis. The second one is called as the symbiosis. Symbiosis is an association between two different organisms where both are benefited. I have given that is the example, that is the Hydra and Zoochlorella. And that is your lichen, and that is the lichen is also a symbiotic association between the algae and fungi. That is the lichen. Clear? It is a symbiotic association. Similarly, the last one was that is the parasitism. Parasitism. What is parasitism? That is, parasitism is an association between two organisms where one is benefited and another is injured. When another is injured. So what is the difference between commensalism and parasitism? In the commensalism, that is, one is benefited but another is neither injured nor benefited. That is the other one is neither injured or nor benefited. Clear? But one is benefited and this is commensal and this is host. In symbiosis, both are benefited. Both the individuals are benefited. That is, I had given the example, that is the Hydra and Zoochlorella. And Hydra is giving the shelter or jaga dauchi Zoochlorella ko rahiba pai. Zoochlorella taku oxygen dauchi plus kichi khadya share karuchi hala je Hydra ko chaliba pai. Clear? And in parasitism, it is an association between two different individuals.
It is an association between two different individuals where one is benefited, another is injured. So the beneficial one is called as the parasite, but the injured one is called as the host. For example, that is the mosquito is the parasite and man is the host, because the mosquito is coming and soaking the blood from the man body. So that is, the man is losing the blood. So this is the parasite and this is the host. Similarly, human louse, that is, the louse is present in the head of that is the head of that is the man, and it is taking the blood from that is the man. So in this way, the parasite and the host, that is the Plasmodium vivax, that is the malaria parasite. That is the Plasmodium. It is a protozoan parasite. You will read in the second year detail. एगुड़ाक हूँ parasite, आइबाना होचंती host. That is called as the parasite and host. जे लाभ पाउची से हला parasite, जार क्षति होउची से हला host. Clear? तो एइथिरे ताने parasite क्या को कहबा ना, parasite is the individual who lives on the cusp of the other living organisms. जे आउ गोटे other living organism ऊपर बंचुची हला, तर टिंकी गाई देहर लागुची बा आम देहरे लागुची कि जा देहरे लागुची, that is called as the parasite and we are the host. Clear? पुणी parasite ता माने किए हला ना, जे अन्य लिविंग बॉडी उपरे बंचिला हला. तेणु parasite क्या को कहबा ना, the living being who lives on the cusp of other living body, जे अन्य लिविंग बॉडी रो सहायता रे बंचुची हला. तो एटा पुणी विभिन्न प्रकार रे parasite पुणी विभिन्न प्रकार हला. तो प्रथम आमे पढिबा that is parasite रो ectoparasite किए ना, the parasite which lives on the outer region of the host body. Ecto means outside हला. The parasite who that is lives on the outer surface of the host body is called as the ectoparasite. मन करो मशाटे आसिक आम उपरे बसला बा टिंकीटे ये बॉडी रो उपरे लागिला हला, उकुणी एगुड़ाक सब बॉडी रो उपरे लागिला, दे आर कॉल्ड एज द ectoparasite. दे आर द parasite आ वी आर द होस्ट. तेणु एटा हला ectoparasite. ectoparasite कौन ना, जो parasite माने होस्ट बॉडी रो बाह्य उपरे बा ऊपर सरफेस रे लागंती, से माने हले ectoparasite. मस्किटो, लीच, द ह्यूमन लाउस माने that is the जो उंकुणी हला, the bed bug, these are called as the ectoparasite. Then you come to the endoparasite. The second one is called as the endoparasite. Ecto means outside, endo means inside the body. Ecto means outside and endo means inside the body. That means the parasite who lives in the or inside the body of that is the host, or in the host body. Endoparasite inside the host body, they are called as the endoparasite. जो parasite माने host रो body भितर रहउचंती, they are endoparasite. Suppose ए जो हमरो झाड़ा रे खसे के गुडाको ए ascaris, roundworm से गुडाको प्लस ए जो malaria plasmodium vivax आम blood रहउची हला, they are called as the endoparasite. तामाने बॉडी रो भितरे जो माने रहिबे, they are called as the endoparasite. The parasite who lives inside the host body called as the endoparasite. तापर आउ दी प्रकार अछि, गोटे होछि टेम्पोरारी parasite, आउ गोटे होछि that is the permanent parasite. टेम्पोरारी तमे जानिथिबो, टेम्पोरारी माने रु जानिचो टेम्पोरारी parasite, आउ गोटे होछि permanent parasite. permanent, टेम्पोरारी एंड परमानेंट. टेम्पोरारी माने अल्प समय पाई जे आसीबो, संगे संगे पळेबो, किछ समय पर से पळेबो, तमे ताकू न गुडैले भी से पळेबो, तमे ताकू न काढिले भी से पळेबो. सपोज मशा जदि आसीबो, से तुमको कामुडिबो, किछ समय पर त तार फुल मील हेइ जिवो, से आपे आपे उडी की पळेबो. दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पोरारी पैरासाइट. किंतु मैक्सिमम एक्टोपारासाइट्स आर टेम्पोरारी पैरासाइट. किंतु धर टिंकीटा एक्टोपारासाइट, किंतु सेटा टेम्पोरारी नुहे, सेटा लागिकी रहिबो हला. किंतु मशा पळै जिवो, लीच पळै जिवो. लीच किए जुक हला, लीच से भी पळै जिवो.
ब्लड पूरा खाई सारा से खसी पड़ो से रहा दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पररी दे आर कॉल्ड एज द टेम्पररी पैरासाइट परमानेंट पैरासाइट किए ना जे बॉडी रे सब लगिक रोचे बहुत समय से परमानेंट पैरासाइट है दि पैरासाइट हु लिव्स परमानेंटली इन और ऑन दी बॉडी भितर रही पारे किंबा बाहर रही पारे साधारणतः धर आस्कारिस आम राउंड वार्म जोटा आम एलिमेंटरी कैनाल रोची से परमानेंटली रोची ताको औषध देले जाई खसिबो ह्यूमन लाउस उंकुणी जे से परमानेंटली रोची ताको औषध देले जाई कि से मरिबो हला तो प्लाज्मोडियम हुकवार्म एगुड़ाक है तापर एगुड़ाक चलीगला एनिमल्स एसोसिएशन लेट मी रिपीट अगेन दैट इज द कॉमन दीज आर कॉल्ड एज द एनिमल्स एसोसिएशन commensalism it is an association between two organisms where one is benefited another is neither benefited nor injured clear it is that is the beneficial one is called as the commensal and that is the other one is called as the host clear then that is the example is the sea anemone is that is the commensal and that is the hermit crab is the host then symbiosis where both the individuals are benefited that is they are called as the symbiosis that is the hydra and algae that is the zooxanthellae similarly lichen that is it is a symbiotic association between the algae and the fungi अच्छी आउ algae अच्छी fungi कौन करछि तार हाइफी अच्छी एमती ब्रांच से प्रोटेक्शन देछि algae ता भितरे फोटो गोटे क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट ये फोटोसिंथेसिस करुछि कला बेलू को कौन करछि ना algae ताकू प्रोटेक्शन देछि शेल्टर देछि आउ fungi कौन करछि ना फंजाई ताको प्रोटेक्शन देछि आउ शेल्टर देछि आउ algae कौन करछि ताको किसी खाद्य दउछि शेयर करछि हला तो इट इज द एसोसिएशन बिटवीन algae एंड fungi दैट इज कॉल्ड एज द lichen एटा प्लांट रे अछि हला आउ आमर दैट इज सिम्बायोसिस हला दैट इज हाइड्रा एंड जूक्लोरेला क्लियर तापर पैरासिटिज्म इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर वन इज बेनिफिटेड अनदर इज इंजर्ड clear only slight difference from the commensal that is the other one is neither benefited nor injured but here the other one is injured clear so the parasitism and the individual who gets benefit that is called as the parasite and that is who is injured that is called as the host clear and that is called as the host the injured that is called as the parasite and the host and the parasites are the individual who lives on the cost of other living body they are called as the parasite जो माने अन्य living body रो जो माने जदि मला ऊपर रहिबे तने सेप्रोफाइटिक हे जिवो तने एठी लिविंग बॉडी बोली कुआ जिवो लिविंग बॉडी हु लिव्स ऑन द कस्ट ऑफ अदर लिविंग बॉडी दे आर कॉल्ड एज द पैरासाइट पुनी पैरासाइट गुडाक केते प्रकार रे ना गोटे होची एक्टोपैरासाइट जो माने बॉडी रो ऊपर सरफेस रे लागी कि रहउचंती होस्ट बॉडी रो दे आर एक्टोपैरासाइट मसा टिंकी दैट इज उड़ीसो आउ दैट इज द जुको दे आर एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट जो माने भितरे रहउछ बॉडी भितरे राउंड वार्म आस्कारिस हला आउ हुक वार्म आउ फाइलेरिया वार्म आउ मलेरिया वार्म दिस आर द एंडोपैरासाइट Similarly, आउ गोटे है टेम्पोरारी पैरासाइट आउ एटा बी सी दैट इज टेम्पोरारी एंड अनदर इज द परमानेंट टेम्पोरारी माने जो माने अल्प समय पाई आसिकी अटैक करती होस्ट बॉडी की मशा है जुक किसी समय नेबे जो खाद्य से फुल पाइबे तापर से आपे आपे पड़े जिवे दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पोरारी एंड परमानेंट जो माने परमानेंटली अटैच करके रहिबे से छाड़िबे नहीं दे आर कॉल्ड एज द परमानेंट parasite and the permanent parasites are your hookworm, roundworm, etc. Clear? Then you come to the that is called as the basis of देखिबा तापर कोन ना ये किछि गला तापर आमे देखिबा जे एगुडा को बेसिक थिंग्स गला बट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन आम जो एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा केते गुड़ाक स्ट्रक्चर को आम स्ट्रिक्टली देखा से स्ट्रक्चर दैट इज द टिपिकल टर्म गुड़ाक कौन अच्छी आम से गुड़ाक देखा कौन से कहूँ दैट इज दी एगुड़ाक किसी क्लासिफिकेशन उपर निर्भर कराई से कहूँ कौन ना किसी सबू एनिमल प्राय सबू एनिमल समस्ते सामान नुहति अलग अलग इंडिविजुअल अच्छा
तेणु दैट इज कहूँ डिफरेंट स्ट्रक्चर सब डिफरेंट एनिमल डिफरेंट स्ट्रक्चर सब अच्छी है तो बाघ गोटे प्रकार देखा मनीष गोटे प्रकार देखा तो हाइड्रा गोटे प्रकार देखा तो सिलेंट्रेट्स गोटे प्रकार देखा एम सब विभिन्न प्रकार एनिमल अच्छा किंतु से कहूँ किंतु जदिओ तांकर स्ट्रक्चर सब डिफरेंट किंतु तांकर फंडामेंटल फीचर किछि समान अच्छी है डिफरेंट एनिमल देयर आर फंडामेंटल features common to various individual in relation to the arrangement of the cell ताने एडा कौ कौ केतडा फंडामेंटल कौन ना अरेंजमेंट ऑफ सेल बॉडीटा किमिति तयारी हेछि एटा यूनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर कि किमिति तयारी हेछि आउ कोन हेछि ना बॉडी सिमेट्री बॉडीटा किमिति बायलेटरल दैट इज द रेडियल किंबा एसिमेट्रिकल एमती सब दैट इज द बॉडी सिमेट्री आउ नेचर ऑफ सिलम ता बॉडी भितर सिलम अछि कि नाही एसिलोमेट यूसिलोमेट और सिडोसिलोमेट एमती सब एनिमल अछंती एगुडा स्ट्रिक्ट सेंस ऑन द क्लासिफिकेशन आउ कोन ना पैटर्न ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम तापरे ऑर्गन सिस्टम गुडा केमिति केमिति पैटर्न ले सजाई के रहिचंती हला तो से कहूँ जे एनिमल माने डिफरेंट हो पारती तांकर स्ट्रक्चर सब डिफरेंट हो पारे इनस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन दैट इज द रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल कौ कौ रिलेशन को नहीं कही ना अरेंजमेंट ऑफ सेल बॉडीर सेल माने किमिति अरेंज होकर रही है आउ सिमेट्री बॉडीर सब पार्ट बॉडीर सब पार्ट गुड़ाक से माने केमिति अरेंज होकर रही ठीक भाव में होती अलग होती दी भाग करी हबो कि हबो नहीं एगुड़ा है बॉडी सिमेट्री मु पढ़ाई गोटे पर गोटे यू विल बी अंडरस्टैंड है देन आउ कौन ना दैट इज नेचर ऑफ सिलमटा किमिति बॉडी केविटी तार अरेंजमेंट किमिति हेछि आउ पैटर्न ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम ता बॉडी भितर ऑर्गन सिस्टम गुड़ा किमिति पैटर्न ले सजेकी रही तो यही आम देखा है यही कौन हम ना एनिमल क्लासिफिकेशन ले युवा आम देखा किमिति एनिमल माने ये सब स्ट्रक्चर गुड़ाक किमिति सिंपल कम्प्लेक्स होका ऊपर को जाइंती दैट इज अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स दैट इज इवोल्यूशन जमी बढ़ी 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 जामी इवोल्यूशन हो एक कोशी रु बहुकोशी होती बहुकोशी आस्ते 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 आसिक मनीष पहुँची सेमती सबू स्ट्रक्चर सबू ऑर्गन बॉडी अरेंजमेंट सेल युवाक सबू से प्रकार आस्ते आस्ते डेवलप है तो से गुड़ाक आम पढ़े पढ़े गोटे पढ़ा तेणु जो आम क्लासिफिकेशन पढ़ा क्लासिफिकेशन ले कौन पढ़ा ना क्लासिफिकेशन टारे मेनली कौ प्रकार क्लासिफिकेशन दैट इज जा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होती किमिति माने सजे होकि लोअर ग्रेड गुड़ाक प्रथमे रे हायर ग्रेड गुड़ा रे से अनुसार सबू ऑर्गन गुड़ा डेवलप करिका जाइछि तेणु आम प्रथमे आज से स्ट्रक्चर रे पढ़ा दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ता माने बॉडीटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किमिति बॉडी रे दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कहूँ ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हूँ 5 प्रकार एटा केते प्रकार रे अछि ना 5 टाइप्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है किमिति ऑर्गेनाइजेशन है एकत्रीकरण किमिति है ना प्रथमे आसीबा पढ़िबा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल प्रथमे आमे पढ़िबा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ए प्रोटोप्लाज्मिक लेवलटा आमे कोठी पाइबा ना सब यूनिसेलुलर एनिमल मानकरे पाइबा यूनिसेलुलर और प्रोटोजोआन मानकरे पाइबा और आमे कहबा प्रोटोजोआन्स आमे यही ऑर्गेनाइजेशनटा कोठी पाइबा ना प्रोटोजोआन्स मानकरे पाइबा किंतु बॉडीटा ऑर्गेनाइज्ड है
एटा को कहीं कहवा प्रोटोन से कहूँ बॉडी जिते प्रकार एक्टिविटीज अच्छी जिते प्रकार एक्टिविटीज अच्छी ऑल लिविंग एक्टिविटीज है से गुड़ाक कन्फाइंड विदिन दी प्रोटोप्लाज्म बा से सेल भितर एटा कन्फाइंड है जो गोटे सेल ए सेल प्रोटोप्लाज्म बुझी हो प्रोटोप्लाज्म हूँ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म गोटे सेल यहाँ हूँ गोटे सेल ए सेल यहाँ हूँ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन भितर जो सब्सटेंसटा आम देखुचे है गोटे जो सब्सटेंसटा आम देखुचे लिविंग बेसिक लिविंग सब्सटेंसटा सेल भितर जोटा अच्छी दिट इज टोटाली कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म ताने ये एककोशी प्राणी मानक कौन ना यहाँ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये देखा जाए एनिमल गुड़ाक 5टा लेवल भाग कराई प्रथम हूँ प्रोटोप्लाज्मिक दैट इज द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौटी पाइबा ना यूनिसेलुलर बा प्रोटोजोआन मानक आम यहाँ पाइबा ये कौन हो ना ऑल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ that is all the living activities which are confined within that is the protoplasm of the individual ताने individual टा एठी गुटिया सेल तार से प्रोटोप्लाज्म भितर सब प्रकार एक्टिविटी रेस्पिरेशन लोकोमोशन सब थिंग्स ऑल द थिंग्स that is present in that or that is performed in that protoplasmic level so that is called as the protoplasmic level organization. Then second one, cellular level of organization. Cellular. The second one is called as the cellular level of organization. The cellular level of organization means here it is found in case of the multicellular animals. It is found in multicellular organs like the sponges. Sponges रे कौन है ना here the cells are arranged in groove that is arranged in groove but here the tissue differentiation is not found it tissue है ही नहीं but the cells are that is present in that is a groove हैला एटी गोटे इंडिविजुअल गुड़ाए सेल द्वारा तैयारी आ सेल गुड़ाक भितर से माने पोरली ऑर्गेनाइज्ड होइची हैला फॉर्म्ड बाय दी that is the where the body is formed by the organization of cells that is organization of cells with division of labor तू ये काम करिवो से काम करिवो से काम हैला different cell perform different functions but do not form the definite tissue और टिश्यू से माने टिश्यू प्रॉपर से माने तैयारी करी नाहांती जोटी नर्वस कोऑर्डिनेशन प्राय न थाए जोटी नर्वस कोऑर्डिनेशन प्राय न थाए अरे ऑर्गेनाइजेशन जेटी हुए जेटी ऑर्गन सिस्टम ही थाए लेवल सिस्टम सेठी ऑर्गन भितर कोऑर्डिनेशन रखा जाए तेणु एठी तो केवल सेल गुड़ाक रही किसी सेल रही एठी गुटे सेल भितर रहा एठी मेंचे सेल आसिक रहीगले आ मेंचे सेल भितर तू ए काम करू तू से काम करू तू से काम करू एमाने सब डिविजन ऑफ लेबर हला बट ये जो सेल गुड़ाक मिसिकी से टिश्यू करना है टिश्यू आम जाने टिश्यू क्या कहवा ना ये ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू एनिमल तीन चारि प्रकार गोटे हूँ एपिथेलियल टिश्यू गोटे हूँ कनेक्टिव टिश्यू गोटे हूँ मसल टिश्यू गोटे हूँ नर्भस टिश्यू पढ़ी तुम कौटी ना हाई स्कूल है तो ये चारि प्रकार टिश्यू अच्छी किंतु एठी टिश्यू एठी आदू ना एठी कौन है दे हैव नॉट फॉर्म द टिश्यू दे आर ओनली दैट इज प्रेजेंट इन ए ग्रुप मैनर वेयर द डिविजन ऑफ लेबर इज present among the cell मान के भीतर division of here the tissue is not found it is cell माने tissue है नांती एटी so the nervous system is not found that is nervous coordination there is no nervous coordination so एटा केटी हुए ना इट all that is the sponges एटी सब केटी हुए ना sponges माने परिफेरा ग्रुप रे हमें पढ़िबा एटा होची cellular level of organization ता माने एटी सब सेल मान के फंक्शन अलग रही से माने गेट टुगेदर होकर रही गोटे ऑर्गेनिज्म भाया है इट इज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेयर दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ए ग्रुप विथ द डिविजन ऑफ लेबर से सेल मान के भितर तू ए काम करू से काम करू सेटा है बट द एक्चुअल टिश्यू हैज नॉट फॉर्म्ड हियर है and the nervous coordination is not found here and it is found in sponges
क्लियर एटा स्पंज मानक हुए एटी सेल माने एमती खाली मेंचे खंडे सेल रही ताने देख केमी इभल्यूशन होची प्रथम आसला एक कोशी तापर आसला एक कोशी किसी मिसी जाई केमी रहिले एटी टोटाल गोटे माने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एटा गोटे ऑर्गेनिज्म जोटा गुड़ाए सेल रे तैयारी किंतु एठी सेमिति टिश्यू हेई नै किछि हेई नै तापर आमे जीवा कोठकी ना तापर आमे जीवा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तापर आमे पढ़िबा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन clear tissue level of organization means here the cell has modified to form the tissue आमे कोन जानिचे आमे जानिचे प्रथमे किमिति दैट इज प्रथम होची एटम्स रु मिसिकी मॉलिक्यूल्स मिसिकी सब सेल मिसिले हबो दैट इज द टिश्यू मिसिले हबो ऑर्गन मिसिले हबो ऑर्गन सिस्टम एंड देन होची ऑर्गेनिज्म हला एटा तुमको दैट इज नीलाद्रि सर पढ़ाइबे दैट इज द लिविंग वर्ल्ड भितर एटा सब पढ़ा जीवो दैट इज ए क्लासिफिकेशन ले एटा पढ़ा जीवो दैट इज किमिति तळा आडू जाउचे जिमिति देले तळा आडू सब जिंस जाए सिमिति किछि एटम्स सब मिसिले मॉलिक्यूल मिसिले सब सेल मिसिकी हबो दैट इज द टिश्यू मिसिकी हबो ऑर्गन मिसिकी हबो ऑर्गन सिस्टम मिसिले हबो ऑर्गेनिज्म आस्ते आस्ते हाई स्कूल भी तुम पढ़िथिबो ठीक सिमिति एठी प्रथमे आसला सेल परे आसला एठी सेलुलर लेवल एठी केवल किछि सेल रहिले किंतु टिश्यू हेई नै किंतु एठी टिश्यू हला एउडा का केइट देखा जीवो ना एटा सिलेंट्रेट ग्रुप रे देखा जीवो सपोज एग्जांपल इन हाइड्रा एटी कौन है ना एटी दिस दैट एटी कौन है एक्चुअली टिश्यू आमे पाइबा नाही ट्रू सेंस रे कहले आमे ट्रू सेंस टिश्यू पाइबा नाही किंतु एटी सेल माने कौन है ना अरेंज्ड इन दैट इज द डिफरेंट लेयर्स एटी दीटा लेयर्स रे सजेकी रहिछंती गोटे एक्टोडर्म गोटे एंडोडर्म सजेकी रहिछंती सेल माने एटी भी डिवीजन ऑफ लेबर अछि किंतु एटी डिवीजन ऑफ लेबर सेल मान के भितरे अछि एटी कौन है ना एटी से कहूची दैट इज दी हियर where the cells of the same functions are that is organized to form poorly defined tissue कारण एटी किछि फंक्शन ले किछि सेल माने डिवीजन होइछंती बाहर पटरे 7 प्रकार सेल भीतर लेयर रे 5 प्रकार सेल अछंती एउडा कहूची एक्टोडर्मल सेल्स एउडा होची एंडोडर्मल सेल ए माने दीटा लेयर रहिछंती तेनु सो कॉल्ड टिश्यू एक्चुअली है नहांती तेणु एटा पोरली डेभलप्ड टिश्यू कारण आमर एनिमल मानक टिश्यू जोटी आसी प्रकृत टिश्यू जोटी आसी से ऑर्गन हो जाती गोटे टिश्यू सेपरेट होगी रही ना तेणु एटा को भी कह जाए सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज द सेल एटी प्योर टिश्यू है नहीं तेणु एटा को कहुच्छे सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एगुड़ाक रही आउ ये कौन हम ना ये मझे गोटे केविटी पाइबा ये केविटी को कहती गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी बा एटा को कहती सिलेंटरन एटा को कहती सिलेंटरन माने हॉलो केविटी और एटा को कहती गैस्ट्रोसिल एटा को कहती गैस्ट्रो मीन्स एलिमेंट्री कैनाल गैस्ट्रो एंड गैस्ट्रोसिल माने केविटी एंड इट इज ओनली फॉर डाइजेशन क्लियर एंड सर्कुलेशन तेणु एटा कह जाए गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी आमे कौन हो खाऊचे आमर एलिमेंट्री कैनाल रे खाद्यटा हजम होची सेटा कहती गैस्ट्रिक कैनाल क्लियर बा एलिमेंट्री कैनाल खाद्यटा हजम हो सारा पर कौन हुए ब्लड रे मिसे ब्लड कौन करे बॉडी रे चारिआडी की पठाए किंतु एठी सेमिति नहीं एठी लो लेवल एनिमल एठी बॉडी भितर हजम हम हजम हो सर्कुलर मूवमेंट कले ये डिफरेंट लेयर ताकू पाइबो तेणु दिस केविटी इज मीट फॉर बोथ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन माने खाद्य हजम करुच्ची प्लस कौन करुच्ची ताकू चारिआडे सब जगार पहुँचाइबार साहाय्य करुच्ची तेणु सेटार कंबाइंडली है गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी गैस्ट्रो मीन्स डाइजेस्टिव वास्कुलर माने सर्कुलेटिव एंड केविटी मीन्स केविटी दैट केविटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ डाइजेशन एंड दि सर्कुलेशन तार तार चारिआडी के पठेबार साहाय्य कर क्लियर तेणु यही प्रकार केविटी थी आ तार गोटे एपारेचर अच्छी ओपन करिछि बाहर को जोटा बिहेव्स एज दि माउथ एज वेल एज दि एनस जोटा से बाटे खाऊची से बाटे आसुची आ से बाटे जाऊची
अनडाइजेस्टेड फूडटा से बाटे जाउछ दैट इज कॉल्ड एज द ओनली वन एपर्चर इज प्रेजेंट व्हिच इज परफॉर्मिंग बोथ द फंक्शन फॉर बोथ दैट इज द माउथ एज वेल एज द एनस क्लियर that is called as the tissue level of organization are you understanding me or not तो मैंने आस्ते आस्ते देख किमिति आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चली प्रोटोप्लाज्मिक एटा हला यूनिसेलुलार सेलुलार लेवल एटी गुड़ाए सेल रहिले किंतु टिश्यू हैला नहीं एटी सेल माने अलग अलग इंडिविजुअल परफॉर्म कले फंक्शन टिश्यू नुहे एठी कौन है सेल माने जदियो डेफिनाइट टिश्यू आईसी नहीं किंतु जो सेल माने गोटे प्रकार काम करूछंती से अरेंज होइकी इमती दीटा लेयर रे सजेइकी रहिछंती सेइतिपई याकू टिश्यू लेयर कुहा जाउची बट एक्चुअली इट इज नॉट ए टिश्यू लेयर सेइतिपई ताकू कुहा जाए टिश्यू लेवल सेइतिपई को कुहा जाए केते जण कहिछंती सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल भी अछि टिश्यू भलिया एटा लेयर रे सजेइकी रहिछि सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एवडा का मैं पाइबा दैट इज द सिलेंट्रेट्स एग्जांपल होची हाइड्रा हला ता मझिरे गुटे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी रहइबो आ तार माउथ रे गुटे एपर्चर रहइबो ऊपरे से एपर्चर देके खाद्य आसुची आ जाउची तापर आमे पढ़िबा कोन ना ऑर्गन लेवल आस्ते आस्ते केमती बड़ी बड़ी चलछि देखो हला तापर कहूची ऑर्गन लेवल कोन ना एटा टिश्यू हे गले जोटी ऑर्गन आसीबो जोटी 4 नंबर दैट इज द ऑर्गन लेवल ता माने ऑर्गन आसीगला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन माने एटी ऑर्गन आसीगला आमे होछ ऑर्गेनिज्म दैट इज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम तमे जानी ना सिस्टम कौन ना जतबले मोर देन वन ऑर्गन्स कंबाइंडली परफॉर्म्स ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टम धर एलिमेंटरी कैनाल ता संगे लिभर ता संगे पेनक्रीज एमाने समस्त काम करचंती कौन ना फॉर द डाइजेशन खाद्य को हजम करिवारे हला तो सेटा को हमें कहबा डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन ना लंग्स आउ नाक ए ट्राकिया ए ब्रोंकस ये समस्त मिसिले हेबो रेस्पिरेटरी सिस्टम हला किंतु लंग्स गोटे ऑर्गन ट्राकिया गोटे ऑर्गन आउ दैट इज द ब्रोंकस गोटे ऑर्गन एवडा होची गोटे ऑर्गन क्लियर तो नाजाल चैम्बर गोटे ऑर्गन एवडा सब डिफरेंट ऑर्गन्स ये ऑर्गन सब मिसिले हेबो ऑर्गन सिस्टम हला तेणु सब ऑर्गन सिस्टम मिसिले हेबो ऑर्गेनिज्म तेणु टिश्यू उपरे आसला ऑर्गन ये ऑर्गन है ऑर्गन सिस्टम है नहीं है एटी केत गुड़ाक ऑर्गन आसी एटा किए ना एटा हूँ प्लाटिएलमिन्थिस एटा कईटी आमे पाइबा ना एटा पाइबा आमे प्लाटिएलमिन्थिस फेसियोला है एटा हूँ प्लाटिएलमिन्थिस फ्लैट वार्म आमे पाइबा प्लाटिएलमिन्थिस यही प्रकार ऑर्गेनिज्म रे आमे पाइबा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तापर नंबर 5 पाइबा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम एटी ऑर्गन सिस्टम आसीगला एटी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने एटी ऑर्गन सिस्टम आसीगला माने एटी मोर देन वन ऑर्गन्स कंबाइंडली परफॉर्म्स ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गन दैट इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटी कौन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है ना ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले विभिन्न प्रकार ऑर्गन मिसिकी गोटे गोटे सिस्टम तैयारी कला एटा केउटो एग्जांपल आमे पाइबा ना एटा आमे पाइबा निमेंथल मिन्थिस कतुरु राउंड आर्म कतुरु हमर कोडेट पर्यंत एटी सब सिस्टम आसीगला रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एटी सब डिफरेंट आसीगला किंतु प्लाटियल मिन्थिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट कंप्लीट ओनली द फ्लेम सेल इज प्रेजेंट नॉट द सिस्टम द डक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट हला नाड़ फाड़ नहीं तेणु यहाँ आसला दैट इज ऑर्गन दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन हमें पढ़ेबा दैट इज द बॉडी प्लान्स हला बॉडी प्लान्स आरंभ कले सरीब नाही हला तो अल्प अल्प चाल आ तमे बोरिंग हो जाउथबो कारण यू आर दैट इज दिस इज द लास्ट क्लास दैट इज पाखापाखी थर्ड क्लास है बेलू यू आर ट्राइंग टू लीव दी दैट इज द क्लास सो दैट इज लेट मी डिस्कस विथ यू